ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। 7th चैप्टर कर रहे हैं हम। 13th श्लोका करेंगे आज। त्रिभिर्गुणमयैर्भावे एहि सर्वम् इदं जगत् एभिः सर्वमिदं सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मोहितं मोहितं नाभिजानाति नाभिजानाति मामेभ्यः परम् अव्ययम्। मामेभ्यः मामेभ्यः परम् अव्ययम्। हरे कृष्णा। तो ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? कोई वॉलंटियर करेगा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए? I can read, Prabhuji. हाँ पढ़िए। Deluded by the three modes, goodness, passion, and ignorance, the whole world does not know me, who am above the modes of and inexhaustible. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो कृष्णा कंटिन्यू कर रहे हैं मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के बारे में बताना। जैसे पिछले श्लोक में उन्होंने बोला था कि सब उन्हीं की एनर्जीज हैं और मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर भी है जो है वो उन्हें कंट्रोल नहीं करते, उनसे ही आते हैं। लेकिन जो जीव है, लिविंग एंटिटीज हैं, वो इन 3 गुणों से बंधे हुए हैं और इस वजह से वो इनके कंट्रोल में है, इसलिए वो भगवान को नहीं जान पाते। डज नॉट नो मी। तो पर्पट पढ़ेंगे फिर और डिस्कशन करेंगे। माता जी आप कंटिन्यू करेंगे पर्पट? हाँ जी, Prabhuji. करें। The whole world is enchanted by the three modes of material nature. Those who are bewildered by these three modes cannot understand the transcendental to this material nature is the Supreme Lord Krishna. Every living entity under the influence of material nature has a particular type of body and a particular type of psychological and biological activities accordingly. There are 4 classes of men functioning in the 3 material modes of nature. Those who are purely in the mode of goodness are called Brahmanas. Those who are purely in the mode of passion are called Kshatriyas. Those who are in the modes of both passion and ignorance are called Vaishyas. Those who are completely in ignorance are called Shudras. And those who are less than that are animals or animal life. However, these designations are not permanent. I may be either a Brahmana, Kshatriya, Vaishya, or whatever. In any case, this life is temporary. But although life is temporary and we do not know what we are going to be in the next life, by the spell of this illusory energy, we consider ourselves in terms of this bodily conception of life. And we thus think that we are American, Indian, Russian, or Brahmanas, Hindu, Muslim, etc. And if we become entangled with the modes of material nature, then we forgot the Supreme Personality of Godhead, who is behind all these modes. So Lord Krishna says that living entities deluded by these 3 modes of nature do not understand that behind the material background is the Supreme Personality of Godhead. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी फॉर रीडिंग। तो यहाँ ट्रांसलेशन फिर से देखते हैं। deluded by three modes, goodness, passion, and ignorance, the whole world does not know me, who am above the modes and inexhaustible. और प्रॉपर्ट में कृष्णा प्रभुपाद कह रहे हैं होल वर्ल्ड इज एन्चेंटेड बाय द 3 मोड्स ऑफ नेचर। तो सबके सब जो हैं वो इन 3 मोड्स जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है, इनके कंट्रोल में है। Those who are bewildered by these 3 modes cannot understand that transcendental to this material nature is the Supreme
लॉर्ड कृष्णा। तो क्योंकि हम खुद बंधे हुए हैं इसलिए हम समझ नहीं सकते। अब यहाँ पे प्रभुपाद ने नेक्स्ट पैराग्राफ बताया है कि सारे के सारे जितने भी लिविंग एंटिटी हैं सबके सब ये गुणों के प्रभाव से बंधे हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और जनरली हम देखते हैं वैदिक सिस्टम में 4 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये डिवीजन जो है ये बर्थ से नहीं है, ये कर्म से है, कर्म से है आपके। अब आपके कर्मों पे डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में होते हो और कौन से मोड्स ऑफ नेचर, कौन से गुण आपको कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आप अपना कर्म चूज करते हो। जैसे मान लो कोई लड़ाई में बहुत ज्यादा हीरोइक है, बहुत उसके अंदर दम है, शक्ति है, और वो क्षत्रिय चूज करता है कि मुझे प्रोटेक्ट करना है सारे जीवों को, सारे जो भी मेरे किंगडम में, तो वो क्षत्रिय बनता है। और क्षत्रिय जो है वो एक पर्टिकुलर मोड उसको गवर्न कर रहे हैं और वो है मोड ऑफ पैशन। उसी तरह से जिनको सिंपल लाइफस्टाइल जीनी है, जिन्हें शास्त्रों को पढ़ना है अच्छे से, जिनको दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करनी है अपनी लाइफ, स्क्रिप्चर्स पढ़ के दूसरों को सिखाने के लिए, टीचिंग, वो ब्राह्मण का काम ले सकते हैं और वो मोड ऑफ गुडनेस से इन्फ्लुएंस्ड है। फिर कई लोगों को है उनको पैसे बनाना है, पैसे बनाने में बड़े तेज हैं वो, उनको बिजनेस करना आता है। उनको आप 100 दोगे तो 100 के 500, 500 के 1000, 1000 के 10,000, 10,000 के लाख, वो इस चीज में बड़े तेज होते हैं, बिजनेस। तो ऐसे लोग जो हैं वो वैश्य की कैटेगरी में आते हैं। वैश्य मीन्स जो बिजनेस मर्चेंटाइल कम्युनिटी है। और ऐसे लोग मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस इससे गवर्न होते। और चौथी कैटेगरी के ऐसे लोग आ जाते हैं जिनमें स्किल्स नहीं है ज्यादा कुछ, उनको आप बोल दोगे कुछ तो वो कर देंगे बस अपने आप। उनके अंदर ना वो इतना है दिमाग कि भाई मैं शास्त्रों को पढ़ सकूं अच्छे से और सिखा सकूं, नहीं, इतनी भी नहीं, हीरोइक भी नहीं है कि वो युद्ध वगैरह करें, नहीं नहीं, उनको उतना उनके अंदर नहीं है कि भाई उनको तो अपनी जान प्यारी है, वो नहीं लड़ाई करेंगे। इतनी स्किल्स भी नहीं है कि पैसे बना सके। तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं ठीक है हम किसी और व्यक्ति को असिस्ट करेंगे जो ये सब चीजें कर रहा है। तो ऐसे लोग होते हैं शूद्र। वो कहते हैं भैया हमारे को अपना पे चेक दे देना, हमें अपनी बंधी हुई सैलरी मिल जाती है, वो अच्छी है। तो ये शूद्र मेंटालिटी। इन लोगों के लिए ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस भी नहीं होते क्योंकि ये फॉलो कर नहीं पाते। और इन तीनों के अलावा भी कई लोग होते हैं जो इनसे तीनों से भी लोअर कैटेगरी में आते हैं, वो असिस्ट भी नहीं कर सकते बाकियों को, वो एकदम अलग हटके ही रहते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो जानवर की प्रवृत्ति होती है उनकी। चांडाल, मलीच, यावन, ये अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं जो शूद्र से भी नीचे की कैटेगरी होती है। इनको कुछ समझाया जाए तो ये समझने के लिए भी तैयार नहीं होते। तो आजकल तो पूरी जो समाज है वो ऐसे लोगों से ही भरा हुआ है। शूद्र तो है ही, लेकिन उससे भी लोअर कैटेगरी के लोग हैं, एनिमलिस्टिक लाइफ। तो इस वजह से सब लोग प्रॉब्लम में हैं। लेकिन ये सब चीजें टेम्पररी हैं, ये कोई परमानेंट नहीं है डेजिग्नेशन कि हाँ भाई तुम ब्राह्मण हो गए तो अब जिंदगी भर ब्राह्मण ही रहोगे, चाहे कुछ भी कर लो। नहीं, अगर आप ठीक से बिहेव नहीं करोगे तो आप शूद्र बन जाओगे। और कोई शूद्र है वो अच्छे से बिहेव करेगा, वो उसके लिए क्या कहते हैं उसकी प्रवृत्ति ऐसी नहीं है शूद्र वाली। चाहे लग रहा था कि हाँ भाई ये तो शूद्र प्रवृत्ति का है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति तो ब्राह्मण वाली है। उसको तो शास्त्र पढ़ना अच्छा लगता है, वो ओबीडियंट है, वो अपने गुरु पे सरेंडर्ड है, जो गुरु कहते हैं वो करता है, उसको समझ में आ गए पूरे शास्त्र अच्छे से और अच्छे से फॉलो कर रहा है। वो सिंपलिसिटी चाहिए उसके, सिंपल लाइफ।
तो ऐसे लोग जो हैं वो फिर ब्राह्मण की कैटेगरी में होते हैं। तो ये सब चीजें टेम्परेरी हैं, डिपेंडिंग अपॉन हम कैसे बिहेव करते हैं हम इन कैटेगरीज में आ जाते हैं। और जब तक हमारा शरीर है तब तक ही कैटेगरी लास्ट करेगी, इवन इफ आई एम एक्टिंग इन दैट परफेक्ट ऑर्डर। चाहे मैं बिल्कुल परफेक्टली ब्राह्मण की तरह बिहेव कर रहा हूँ, क्षत्रिय की तरह बिहेव कर रहा हूँ, या शूद्र की तरह बिहेव कर रहा हूँ, वो भी तब तक लास्ट करेगा जब तक शरीर है। एक बार शरीर चला गया तो फिर तो चला गया, फिर तो सोल के लेवल पे तो कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है। उसी तरीके से हमारी कई कंसेप्शन होती है कि हम इंडियन है, अमेरिकन है, रशियन है, ब्राह्मण है, हिंदू है, मुस्लिम है। ये सारी की सारी जो है ये इस शरीर से रिलेटेड है। ये एक्चुअली कोई भी डेजिग्नेशन सोल की नहीं। असली तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जीवेरा स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, कि हर एक जीवा जो है वो भगवान का नित्य दास है, इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्ण। और हमारे को ये प्रवृत्ति क्यों आती है, क्यों हम कहते हैं कि हम एक पर्टिकुलर कंट्री के हैं या एक उसके हैं, क्योंकि हम मोड्स और मटेरियल नेचर से कवर्ड हैं। इसलिए हमें बस उसी तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं हम अपने आप को कि हम ब्राह्मण है, हिंदू है, मुस्लिम है। हम भूल जाते हैं कि इसके बियॉन्ड भी कुछ है। ठीक है ना। तो ये बड़े इजी वर्ड्स में यहाँ पे प्रभुपाद ने हमें समझा दिए। आगे बढ़े, किसी का और कोई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ कौन रीड करेगा, लास्ट वाला? I can read. हाँ पढ़िए। There are many different kinds of living entities, human beings, demigods, animals, etc. And each and every one of them is under the influence of material nature, and all of them have forgotten the transcendent personality of Godhead. Those who are in the modes of passion and ignorance, and even those who are in the mode of goodness, cannot go beyond the impersonal Brahman conception of the absolute truth. They are bewildered before the Supreme Lord in his personal feature, which possesses all beauty, opulence, knowledge, strength, fame, and renunciation. When even those who are in the goodness cannot understand, what hope is there for those in passion and ignorance? Krishna consciousness is transcendental to all these three modes of material nature, and those who are truly established in Krishna consciousness are actually liberated. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद बता रहे हैं कि अलग अलग तरीके के लोग जो हैं वो अलग अलग मोड्स और मटेरियल नेचर से इन्फ्लुएंस होते हैं, और इस वजह से वो भूल जाते हैं भगवान को। लेकिन अगर कोई पूरी तरह से गुडनेस सत्वगुण में भी हो तो वो भी भगवान को पूर्ण रूप से नहीं जान सकता। कभी कभार कुछ लोग जो ब्राह्मण हैं वो वेदों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर वो मोड ऑफ गुडनेस में ही है अभी तो वो भगवान को फिर भी नहीं जान पाएंगे। थोड़ा बहुत इम्पर्सनल ब्राह्मण तक पहुंच सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से भगवान का नॉलेज नहीं ले पाते। और भगवान जो 6 ऑप्युलेंसेस, 6 गुण संपन्न है भगवान। इसका मतलब कि ये सारे जो गुण है भगवान के अंदर पूर्ण रूप से हैं। कहीं पे भी हमें ब्यूटी, ऑप्युलेंस, नॉलेज, स्ट्रेंथ, फेम, रिनंसिएशन दिख रही है तो वो एक स्मॉल अमाउंट में ही दिख सकती है। चाहे रिचेस्ट पर्सन ले लो आप, मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन ले लो, मोस्ट फेमस पर्सन ले लो, उनके अंदर जो भी फेम, ब्यूटी या वेल्थ, ये सब चीजें हैं, ये सारी की सारी जो है भगवान की ब्यूटी, ऑप्युलेंस, नॉलेज, स्ट्रेंथ, फेम, इन सब का एक बहुत स्मॉल फ्रैक्शन है। और वो स्मॉल फ्रैक्शन से हम इतने ज्यादा मेस्मराइज हो जाते हैं, इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। कभी कोई सुंदर व्यक्ति देखते हैं हम, बहुत सुंदर लगता है हमें, या कोई वेल्दी देखते हैं तो बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, देखो कितनी वेल्थ है इसके, या बहुत नॉलेजेबल देखते हैं तो हम अट्रैक्ट। लेकिन एक्चुअली ये बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट फ्रैक्शन है भगवान की ब्यूटी की। तो भगवान से कितना अट्रैक्ट होंगे हम अगर हम भगवान के संपर्क में आए। तो ये तभी पता लग सकता है जब हम कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करें, और कृष्णा कॉन्शियस के माध्यम से जब हम भगवान की तरफ बढ़ेंगे तो हम सारे के सारे गुण जो हैं, गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनकी सारे गुणों की जो रोप्स ने हमें बांध रखा है, इसको तोड़ के हम आगे निकल जाएंगे, ट्रांसेंड कर सकते हैं।
और फिर हम उसको कहते हैं विशुद्ध सतोगुण, प्योर गुडनेस। हम प्योर गुडनेस में आ जाते हैं, अकर्मा, जैसे माता जी कल कह रही थी करके। तो प्योर गुडनेस में आने के बाद वो कृष्णा कॉन्शियसनेस के लेवल पे एक्चुअली मुक्त हो जाता है व्यक्ति, लिबरेट हो जाता है, फिर बंधा नहीं रहता इनसे। उसको कहते हैं मोक्ष, उसको कहते हैं लिबरेशन। ठीक है, क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? हाँ जी प्रभु जी। Yes. ओके, नेक्स्ट श्लोका पे चलेंगे। 7.14 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है ये। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लेना कभी भी आप। अब हम 7.14 रिसाइट करेंगे, आप प्लीज मेरे पीछे रिसाइट कीजिए। देवी ही एष गुणमयी, देवी देवी एष गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मम माया माया दुरत्यया, दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये मामेव ये प्रपद्यन्ते, प्रपद्यन्ते, मायाम एताम तरन्ति ते, मायाम् एतां मायाम् एतां तरन्ति ते। तरन्ति ते। ओके, तो ये श्लोका आप चेक वो कर लीजिए, टिक कर लो, चेक कर लो, नोट बना लो। 7.14 ये सबको याद करना है, मेमोराइज करना है। तो कल हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे किस किस का 7.14 रिसाइट, कौन रिसाइट कर पा रहा है। ओके, तो ट्रांसलेशन पे चलेंगे अभी, बिकॉज ये बड़ा है इसलिए वील नॉट रिसाइट, विल डायरेक्टली गो ऑन ट्रांसलेशन। तो कौन रीड करेगा ट्रांसलेशन जिसने अभी तक रीड नहीं करा? तो वॉलंटियर है? Prabhuji, I can read. हाँ माता प्लीज। The divine energy of mind, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। तो देखो भगवान यहाँ पे खुद बता रहे हैं कि ये जो शक्तियां हैं, ये जो मोड्स हैं, ये तीनों के तीनों जिन्होंने बांध रखा है, ये भगवान की एक शक्ति है, मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, और इनको क्रॉस नहीं कर सकते आप। बहुत मुश्किल है इसको क्रॉस करना। मगर इसका सॉल्यूशन क्या है? कौन इसको क्रॉस कर सकता है? जिसने भगवान के ऊपर अपने आप को समर्पित कर दिया है। जब हम भगवान की शरण ले लेते हैं तो फिर हम इससे बाहर आ सकते हैं। अगर हम भगवान की शरण नहीं लेते, भगवान के ऊपर समर्पित नहीं होते, तो फिर हम नहीं आ सकते। ठीक है ना? समझ में आ रहा है सबको? प्रभु जी समझ। ओके, माता जी आप कंटिन्यू करेंगे पर्पट, पहला पैराग्राफ। Okay, Prabhuji. The Supreme Personality of Godhead has innumerable energies, and all those energies are divine. Although the living entities are part of his energies and are therefore divine, due to contact with material energy, their original superior power is covered. Being thus covered by material energy, one cannot possibly overcome its influence. As previously stated, both the material and spiritual natures, being emanation from the Supreme Personality of Godhead, are eternal. The living entities belong to the eternal superior nature of the Lord, but due to contamination by the inferior nature in nature matter, their illusion is also eternal. The conditioned soul is therefore called Nityabad or eternally conditioned. तो यहाँ पे रुकते हैं माता जी थोड़ा सा, we'll discuss then we'll go for। हरे तो यहाँ पे बता रहे हैं सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हैज इन्यूमरेबल एनर्जीज। भगवान की जो है शक्तियां ये अनगिनत है। भगवान की शक्तियां का कोई लिमिट नहीं है, और सारी भगवान की शक्तियां जो हैं वो दिव्य हैं। और हम भी जो हैं जीव, लिविंग एंटिटीज, ये भी तो भगवान की एनर्जीज ही हैं। तो ये जो जीव और लिविंग एंटिटीज हैं ये भी भगवान की शक्ति हैं, तो इसलिए वो डिवाइन है सारे लिविंग एंटिटीज। लेकिन क्या होता है, क्योंकि हम मटेरियल एनर्जी के कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो इवन दो
हम सुपीरियर एनर्जी है भगवान की, लेकिन हम कवर हो जाते हैं, और कवर होने के कारण हम ये जो मोड्स हैं उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और इसको ओवरकम नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। फिर यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं बोथ मटीरियल एंड स्पिरिचुअल नेचर्स बीइंग एमनेशन ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड आर इटर्नल। मतलब कि जो सारी शक्तियां हैं भगवान की, चाहे वो मटीरियल ले लो या स्पिरिचुअल ले लो, ये सारी इटर्नल हैं, ये सब सनातन है, कभी एंड नहीं होता लिविंग एंटिटीज का भी। और सुपीरियर नेचर में आती हैं लिविंग एंटिटीज, लेकिन क्योंकि इंफीरियर नेचर से उनका कांटेक्ट हो गया तो अभी वो कवर्ड हो गई हैं और इल्यूजन में आ जाती है। और इल्यूजन में आने के कारण कितने कितने जन्म निकल जाते हैं हमारे, हम ऐसे ही रहते हैं, हम भगवान से अलग रहते हैं। इसलिए क्योंकि लिविंग एंटिटीज इतने टाइम से इल्यूजन्ड है और बंधी हुई हैं, तो उनको कहते हैं नित्य बद्धा। तो दो तरह की लिविंग एंटिटीज हैं, एक है नित्य मुक्ता, उसके बारे में अभी बोला नहीं है यहाँ पे, लेकिन नित्य मुक्ता है और नित्य बद्धा है। नित्य मुक्ता मीन्स अब वो मुक्त हो चुकी है, उन्हें मोक्ष मिल चुका है, वो लिबरेट हो चुके हैं, वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, उनको कोई मटेरियल एनर्जी इन्फ्लुएंस नहीं कर रही है, मोड्स ऑफ नेचर उनको बांध नहीं रहे, वो हो गए नित्य मुक्ता। और नित्य बद्धा जो है वो इटर्नली कंडीशनड है, वो कब से भगवान जाने कब से वो ऐसे ही कंडीशनड है, कई कई लाइफ टाइम, कितने कितने मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम हो गए हमें, हम भगवान से अलग हैं। इसीलिए हम इमेजिन भी नहीं कर पाते कि ऐसी कोई लाइफ भी हो सकती है जहां हम भगवान के साथ होंगे, जहां पे कोई बर्थ, डिजीज, ओल्ड एज और डेथ नहीं होगी, कोई मिजरीज नहीं है वहां, कोई ट्रबल नहीं है, भगवान के साथ एंजॉय कर रहे हैं सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। एवरी वर्ड इज लाइक अ सॉन्ग देयर, एवरी स्टेप इज अ डांस। तो वहां पे इतना एंजॉयमेंट है। माता जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। Okay. No one can trace out the history of his becoming condition at a certain date in material history. Consequently, his release from the clutches of material nature is very difficult, even though that material nature is an inferior energy, because material energy is ultimately conducted by the supreme will, which the living entity cannot overcome. Inferior material nature is defined herein as divine nature, due to its divine connection and movement by the divine will. Being conducted by divine will, material nature, although inferior, acts so wonderfully in the construction and destructions of the cosmic manifestation. तो यहाँ पे The Veda. Okay. यहाँ पे रुक जाओ, थैंक यू। ओके, तो यहाँ से पढ़ा हमने, यहाँ से आते हैं। तो नित्य बद्धा जो है लिविंग एंटिटीज, इतिहास में आप ट्रेस आउट नहीं कर सकते कि कितने टाइम हो गया हमें, अच्छा इस डेट को जो है हम नित्य बद्ध हुए थे, ऐसे नहीं है, वो कोई ट्रेस आउट नहीं कर सकता, इतने टाइम से हम लोग यहाँ पे भटक रहे हैं। और इसीलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ से हमें निकलना। मटीरियल एनर्जी हालांकि इंफीरियर है, लेकिन फिर भी उससे कवर होने के कारण हम जो है हमारा अपनी आइडेंटिटी नहीं समझ पाते कि हम सोल है, हम आत्मा नहीं है, सॉरी हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, और हम यही सोचते रहते हैं कि हम ये शरीर हैं, ये प्रॉब्लम आ जाती है। इंफीरियर मटेरियल नेचर इज डिफाइंड हियरइन एज डिवाइन नेचर ड्यू टू इट्स डिवाइन कनेक्शन मूवमेंट बाय द डिवाइन विल being conducted by divine will. Material nature, although inferior, acts wonderfully in the construction and destruction of the cosmic manifestation. तो यहाँ पे बताया गया है क्योंकि भगवान की इच्छा अनुसार माया शक्ति अपने आप को चला रही है, तो इवन दो मटीरियल नेचर जो है, जो भगवान की इंफीरियर शक्ति है, बट वो भगवान की विल से अपने आप को कंडक्ट करती है, और पूरे जो कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन है कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन का, ये चलता रहता है।
ओके, तो मैं पढ़ देता हूँ ये लाइनें. द वेदास कंफर्म दिस एज फॉलोज. मायम तु प्रकृतिम विद्यान मायिनाम तु महेश्वरम. Although Maya illusion is false or temporary, background of Maya is the supreme magician, the personality of Godhead, who is Maheshwar, the supreme controller. तो अगर आप माया को देखो, इल्यूजरी एनर्जी वो फॉल्स होती है, टेम्परेरी होती है, लेकिन जो उसको कंडक्ट करा रहा है वो तो भगवान है. तो माया अपने आप को भगवान के शक्ति के कारण चला पा रही है. सुप्रीम मैजिशियन बोला यहाँ पे, महेश्वर सुप्रीम लॉर्ड है. तो ये श्वेतवाश्वरा उपनिषद में से कोट किया गया. ऑल राइट, तो नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? कोई वॉलंटियर करेगा जिसने अभी तक रीड नहीं किया? I can read. हाँ पढ़िए प्लीज. Another meaning of guna is roop. It is to be understood that the conditioned soul is tightly tied by the ropes of illusion. A man bound by the hands and feet cannot free himself. He must be helped by a person who is unbound, because the bound cannot help the bound. The rescuer must be liberated. Therefore, only Lord Krishna or his bona fide representative, the spiritual master, can release the conditioned soul. Without such superior help, one cannot be freed from the bondage of material nature. Devotional service or Krishna consciousness can help one gain such release. Krishna, being the Lord of illusionary energy, can order this insurmountable energy to release the conditioned soul. He orders this release out of his careless, causeless mercy on the surrendered soul and out of his paternal affection for the living entity, who was originally a beloved son of the Lord. Therefore, surrender unto the lotus feet of the Lord is the only means to get free from the clutches of the stringent material nature. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू. तो ये जो 3 गुणों की हमने बात करी है, कौन कौन से 3 गुण कोई बता सकता है? कौन से 3 गुणों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? सत्वगुण, रजोगुण एंड तमोगुण. करेक्ट, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण. तो ये गुण का क्या मतलब होता है? एक मतलब होता है गुण का रोप या रस्सी. तो ये 3 रस्सियां हैं जिन्होंने बांध रखा है, और इससे बहुत टाइटली बांधा हुआ है. हमें पता भी नहीं चलता. ऐसी रोप्स हैं ये कि हमें इल्यूजन कर देती हैं, भ्रमित कर देती हैं पूरी तरीके से. और जब किसी इंसान के हाथ और पैर पूरी तरह से बंधे होते हैं तो वो अपने आप को जनरली खोल नहीं पाते. वो ऐसे बांधे हुए हैं कि अपने आप नहीं खोल. लेकिन जो खुला हुआ है, क्योंकि अब हाथ और पैर आपके अगर चल ही नहीं रहे, पूरी तरह से बांध ही रखे हैं, तो आप अपने आप को नहीं रोक सकते. लेकिन जिसके खुले हुए हैं वो इजीली आके आपको खोल सकता है. इसीलिए भगवान के एक रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत होती है. एक ऐसा व्यक्ति जो गुरु हो, जो खुद बंधा ना हो इन चीजों से, वो आके हमारी रस्सियां खोल सके और हमें लिबरेट कर सके. इसलिए भगवान ने ये प्रोसेस बनाया है, जिसको हमने पढ़ा था 4th चैप्टर में. भगवान कह रहे थे, तद्वदी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना. क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो तत्वदर्शी है, जिसको ज्ञान है, जिसने देख रखा है सब, और वो आपको ज्ञान देंगे. उनसे आप पूछो सवाल और उनकी सेवा करो. ऐसे व्यक्ति जो हैं वो आपको पूरा ज्ञान दे सकते. और यहाँ पे भी यही बोल रहे हैं कि ऐसे गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाना चाहिए जो पूरी तरह से खुद रस्सियों से खुले हुए हैं. कई बार ऐसे लोग जो खुद बंधे होते हैं रस्सियों से, वो प्रिटेंड करते हैं अपने आप को हम गुरु हैं, लेकिन ऐसे लोग गुरु नहीं होते, और वो गलत रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं लोगों को. और आम लोग ऐसे लोगों को देख के सोचते हैं कि शायद गुरु होना ही नहीं चाहिए, या हमें कभी गुरु लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो गुरु बनने के कारण के लायक नहीं. मगर ऐसा नहीं है. जो यहाँ पे शास्त्रों में दिया है, अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो भगवान सही टाइम पे, सही सिचुएशन में हमें रिवील करेंगे
कि कैसे हम किन से शिक्षा ले सकते हैं, किन को गुरु बना सकते हैं, मगर वी हैव टू बी सीरियस एंड सिंसियर। सिंसेरिटी और सीरियसनेस बहुत जरूरी है। हमें ये सच्चे दिल से भगवान की शरण में आना है। अगर हम सच्चे दिल से भगवान की शरण में आएंगे तो भगवान सारे रास्ते हमारे लिए खोल देंगे। तो यहाँ पे बताया गया कि एक गुरु है जो वो खोल सकते हैं रस्सियां। डिवोशनल सर्वे ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन हेल्प वन गेन सच रिलीज। और जो भक्ति प्रोसेस है उसको जो फॉलो करता है गुरु के आदेश अनुसार, वो इजीली इन रस्सियों से खुल जाता है। Krishna, being the Lord of illusory energy, can order this insurmountable energy to release the conditioned soul. He orders this release out of his causeless mercy on the surrendered soul. तो हालांकि खुलना आसान नहीं है, लेकिन भगवान अपनी कृपा दे के हमें खोल देते हैं इन रस्सियों से। और जो हमारा रिलेशनशिप है भगवान से वो फिर से रिवाइव हो जाता है। और हम जैसे कहते हैं कि भगवान कहते हैं अहम बीजा प्रदापिता, कि भगवान जो है आई एम द सीड गिविंग फादर फॉर एवरी लिविंग एंटिटी। तो भगवान जीव के परम पिता परमेश्वर है। तो जो लिविंग एंटिटीज हैं वो बंधी हुई और ऐसी सफरिंग सिचुएशन में कभी भी पिता को अच्छा नहीं लगता। वो चाहते हैं कि आ जाए हम, लेकिन हमने अपने लिए एक गड्ढा खोदा है जिसमें हम गिरे हैं और भगवान हमारी मदद करते हैं। अगर हम चाहेंगे तो भगवान रस्सियां खोल के हमें वापस अपने धाम में बुला लेंगे। Therefore, surrender onto the lotus feet of Lord is the only means to get free from the clutches of stringent material nature. तो इसलिए भगवान को पूरी तरह से समर्पित करना ही सबसे प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट और इजी वे है जाने का। ओके, लास्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, देन विल कंक्लूड फॉर टुडे। तो जिसने अभी तक नहीं पढ़ा, कैन यू वॉलंटियर, कैन समबडी वॉलंटियर लास्ट पैराग्राफ पढ़ने के लिए? आप में से जिसने अभी तक नहीं पढ़ा, कोई पढ़ना चाहेगा? Yes, I can read. हाँ, the word mom, the words. The words Mam Eva are also significant. Mam means unto Krishna, Vishnu only, and not Brahma or Shiva. Although Brahma and Shiva are greatly elevated and are almost on the level of Vishnu, it is not possible for such incarnations of Rajogun, passion, and Tamogun, ignorance, to release the conditioned soul from the clutches of Maya. In other words, both Brahma and Shiva are also under the influence of Maya. Only Vishnu is the master of Maya. Therefore, he alone can give release to the conditioned soul. The Vedas, Shvetashvara Upanishad 3.8 confirm this in the phrase Tam Eva Viditva, or freedom is possible only by understanding Krishna. Even Lord Shiva affirms that liberation can be achieved only by the mercy of Vishnu. Lord Shiva says, Mukti Pradata Sarvesham Vishnu Eva Na Samasya. There is no doubt that Vishnu is the deliverer of liberation for everyone. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you very much. तो यहाँ पे बताया गया कि words mam eva are also significant. Mam means onto Krishna या विष्णु only. तो कृष्णा की तरफ इंडिकेट किया गया है, ब्रह्मा जी और शिव जी की तरफ नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी और शिव जी जो हैं वो एक्चुअली तो भगवान के कृष्णा या विष्णु आप ले लो, शिव जी जो है वो एक तरीके से भगवान के ही एक्सपेंशन है। इन लोगों को कहते हैं ब्रह्मा शिवा विष्णु, गुणा अवतार भी कहते हैं। गुणा अवतार मीन्स जो ये तीन गुणों को कंट्रोल करते हैं ये। तो विष्णु जी जो है वो गुडनेस को कंट्रोल करते हैं, शिव जी जो हैं वो कंट्रोल करते हैं तमोगुण को, और जो ब्रह्मा जी हैं वो रजोगुण को कंट्रोल करते हैं।
तो ऐसे इनको गुण अवतार भी कहते हैं। लेकिन इनके ब्रह्मा और शिव जी ये कभी भी विष्णु जी के लेवल तक नहीं होते, ठीक है। और ये भी कभी कभार माया में पड़ते हैं। जैसे कई सारे स्टोरीज हैं, ब्रह्मा जी कैसे बिल्डर हो गए थे, शिव जी कैसे बिल्डर हो गए थे, ये हम कल इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन विष्णु जी हैं वो ही इज द ओरिजिनल कंट्रोलर ऑफ माया। तो यहाँ पे बताया गया है कि शास्त्रों में, जैसे श्वेतेश्वर उपनिषद में ऐसे कोट किया है यहाँ पे 3.8 से, तम में विदित्वा फ्रीडम इज पॉसिबल ओनली बाय सरेंडरिंग टू कृष्णा। इसलिए भगवान कृष्ण की शरणागत होके ही हम कर सकते हैं। और भगवान कृष्ण की शरणागत करने के लिए इवन शिव जी खुद कहते हैं, वो खुद कहते हैं मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णु एव ना संशया। इसमें कोई संशय, डाउट ही नहीं है कि मुक्ति प्रदाता तो कृष्ण ही है या विष्णु ही है। तो ये पॉइंट हमें क्लियर होना चाहिए, क्योंकि लोगों को वेग आइडियाज हैं, लोगों को पता नहीं है भगवान देवता इन सब के बारे में, तो वो लोग समझ नहीं पाते। लेकिन जो अच्छे से शास्त्रों को पढ़ते हैं, समझते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करते हैं, उनको सही नॉलेज भी हो जाती है और उसी तरीके से वो रिस्पेक्ट भी कर पाते हैं। देवी देवताओं को भी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, भगवान को भी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम स्टॉप करेंगे यहाँ पे। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई पॉइंट है तो अभी हम ले सकते हैं। 7.13 और 14 करें हमने आज। तो इसकी आप संस्कृत जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा ये श्लोक की। देवी ही एषि गुणमयी मम माया दुरत्यय माम एव हे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ओके, एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स, पॉइंट्स, रिफ्लेक्शंस? कोई कुछ शेयर करना चाह रहा है? प्रभु जी, हाँ जी, जो बताइए। लास्ट पैराग्राफ में बोला गया है वो मुझे प्रभु जी इतना क्लियर नहीं हुआ है। When they said, in other words, both Brahma and Shiva are also under the influence of Maya. तो ये भगवान की माया शक्ति जो है वो इतनी शक्तिशाली है कि ब्रह्मा जी और शिव जी भी इनके चंगल में आ जाते हैं। जैसे आपने ब्रह्म विमोहन लीला पढ़ी होगी भागवतम में, कि कैसे ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए थे जब कृष्णा को देख रहे थे वो कि ये क्या है। तो माया शक्ति के प्रभाव से ब्रह्मा जी सोचने लगे कि कृष्णा जो है वो कोई साधारण बालक है। तो फिर उन्होंने सारे कृष्णा के साथ जो गोपा थे और जो गायें थी, सब गैया और गोपा को छुपा लिया और कृष्णा खुद ही एक्सपैंड कर गए, एक एक गाय और एक एक गोपा बन गए। और जब ब्रह्मा जी ने बाद में देखा तो बहुत उनको, वो खुद ही बिविल्डर हो गए, खुद ही फंस गए, समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। उसी तरह से कई बारी लीला होती है ब्रह्मा जी की। और शिव जी भी जब मोहिनी मूर्ति को उन्होंने देखा तो एकदम वो खुद ही मोह में पड़ गए थे, वो खुद ही भागने लगे। इवन दो शिव जी काफी पावरफुल हैं। और भी कई बारी ऐसे होता है, एक बारी शिव जी की का युद्ध भी हुआ था विष्णु जी से। तो ऐसे अलग अलग लीलाएं होती रहती हैं, लेकिन वो माया के प्रभाव से लीला को फैसिलिटेट करने के लिए ग्रेट पर्सनालिटीज जो हैं वो दिखाते हैं। ब्रह्मा जी और शिवा जी भी दिखाते हैं कि देखो हम तो फिर भी माया में फंस जाते हैं, लेकिन हमारे जो इष्ट देव हैं विष्णु या कृष्णा, वो सबसे परे हैं माया से, और इनकी शरण लो। तो ऐसे वो रिकमेंड करते हैं। समझ में आ गया बातें? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऑल राइट, और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, तो हम यही भी स्टॉप करते हैं। ग्रंथराज भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।